तो मैं वो उसको तो ऑन कर लूँ ना, जो जो तुमने लिंक भेजा है। ठीक ठीक ठीक। So very good evening to one and all. I'll be starting with my prosthodontic session that will be on Pontics and slight bit of retainers. So let us start with Pontics. Now we all know that what is a Pontic. A Pontic is if we are going for an FPD or a fixed partial denture, right? So if we are going for a in a fixed partial denture, so when we are talking about just a minute, there is some issue with my e-pen. Okay, till then I will start with my presentation. Leave it. Okay, so an artificial tooth, अब जैसे मान लीजिए कोई अगर दांत मिसिंग है और आप उसे FPD से रिप्लेस कर रहे हैं, so if you are replacing that tooth is known as the Pontic. Now if that tooth should perform all the function of aesthetics and function and will fill the space that is earlier than there was a tooth. So it is basically, if you see this figure, that this is a connector, okay, and the tooth that is missing is the Pontic, okay. These are the retainers, and between the Pontic and the retainer, the connection is known as the connector. So between the Pontic and the retainer, it is basically the connector, okay. So right, so if we talk about the what are the requirements of the Pontic, so we will talk about there are at least the requirement that we talk about in the Pontic is the first the gingival considerations, okay, the gingival consideration, the proximal consideration, and the occlusal considerations. So there are the consideration that we see in a Pontic.
ठीक, just a minute. Chalo, my e-pen is not working. Okay, leave it. So if we see about what are the requirements of the Pontic, we know that it should restore the function it replaces, it should provide good aesthetics, it should be comfortable, it should be biocompatible. Biocompatible का मतलब है कि भाई कि कोई भी नेगेटिव रिएक्शन नहीं आना चाहिए ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू एंड द हार्ड टिश्यूज, ठीक है. दूसरा हमारा जो इफ so if it replaces the, so it should also permit good oral hygiene, it should preserve the underlying mucosa and the bone. Very important requirements of the Pontic. Now if we say the considerations of the Pontic, the gingival considerations, first I will talk the one of the most important considerations are the gingival considerations. Now when we are talking about the gingival considerations, first of all write down, it's a very important topic, that the Pontic that makes the mucosal contact, write down the cross section of the Pontic buccolingually is concave and the cross section of the Pontic mesiodistally is convex. Mesiodistally is convex. ठीक. Second, write down, it should have a point pressureless and a passive contact. Very important. Point passive and a pressureless contact. It should have a point passive and a pressureless contact. It should never it should make a point contact. It should never make a it should never make a broad contact or a surface contact, right? But my apologies, my e-pen is not working, so we have to manage like this only. Okay, so we have to see that the patient is able to use the interdental aids to remove any food debris that is being collected around or beneath the Pontic, right? And for the gingival consideration, write down the best material that we go, we see that the best material for the gingival surface of the Pontic is the glazed ceramic. It is the glazed ceramic because it is very kind to the soft tissues, right? And because it is glazed, so anything that will be collected over it will slip away from the tooth surface and will not collect over it, right? So point contact, passive contact, pressureless contact, there should not be any blanching of the soft tissues. Remember this, right? तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, राइट? तो बेस्ड ऑन दी, तो ये होगी जिंजाइवल कंसिडरेशन. जिंजाइवल कंसिडरेशन में अभी हम जब क्लासिफिकेशन देखेंगे, it can be with mucosal contact, it can be without mucosal contact. So if we are talking about with mucosal contact, there might be saddle Pontic, ridge lap Pontic, modified ridge lap Pontic, ovate Pontic, बुलेट को हम एग शेप्ड, हार्ट शेप्ड या कोनिकल Pontic भी बोल देते हैं. राइट डाउन, with the bullet Pontic, what we can do is we can also that it is egg shaped, okay, heart shaped और कोनिकल Pontic, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है. then is the spherical Pontic. Then without mucosal contact, these are basically the sanitary Pontics, जो कि कम से कम 2 से 3 mm, there will be some space of the gingival aspect from the ridge. So without mucosal contact, when we talk about without mucosal contact, we have conventional sanitary, that is your fish belly Pontic, then bar sanitary, and then modified sanitary, that is parallel Pontic. Modified sanitary, that is the parallel Pontic. So if we see the figures, first figure is the saddle Pontic, this one.
Now you can see that it is just like a saddle. That means there is a space in between the ridge and the gingival aspect of the Pontic, and you can see on it is contacting at two surfaces, that is on the labial surface and on the lingual surface. Now it is not expected out of a Pontic. It may be aesthetic because it is extended over the facial surface. It may be aesthetic, but it is not biocompatible. Okay, it is not kind to the tissues. It will proliferate the soft tissues. There can't be a positive reaction with this. And और आप देख रहे हो there is a space, so खाना जाएगा, it will rot, and patient will not be able to clean it. So saddle Pontic was thrown out of the window, right? So it is not being used. Now then we have a ridge lap Pontic. इसी की modification है ridge lap. इन्होंने क्या किया, rather than contacting at two surfaces, इन्होंने सारा कांटेक्ट फेशियल सरफेस पे दे दिया. दे गेव इट ऑन द फेशियल सरफेस, दैट इज द रिज लैप. बट अगेन ठीक है, एस्थेटिक भी हो गया, ठीक है, बट खाना भी नहीं फंस रहा, ठीक है जी. इट इज एबल टू, इट इज हाइजीनिक, ओके. देन बट द प्रॉब्लम वाज दैट इट इज अगेन हैविंग ए एरिया कॉन्टैक्ट विद द सॉफ्ट टिश्यूज. एरिया कॉन्टैक्ट अगेन दैट इज नॉट एट ऑल गुड. सबसे बेस्ट पॉन्टिक अगर आपसे पूछा जाए, सबसे बेस्ट पॉन्टिक अगर आपसे पूछा जाए, तो दैट इज योर मॉडिफाइड रिज लैप. राइट डाउन modified ridge lap Pontic. It is versatile Pontic. It is one of the most best designed Pontics, okay, that can be used in the specifically in the aesthetic zone. It can be used for replacing maxillary anteriors, for maxillary posteriors and mandibular anteriors. Remember this. 3 जगह modified ridge lap Pontic यूज किया जा सकता है. That is your maxillary anteriors, maxillary posteriors and mandibular anteriors, right? Okay, got it? I hope it is clear. Now the modified ridge lap Pontic is also known as steel Pontic, S-T-I-E-L. It is also known as steel Pontic because it was given by steel. And if you see that it has got all the 3 जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट थी Pontic के, सारी की सारी ये उसको फुलफिल करता है. वाई? एक तो फेशियल सरफेस पे बिल्कुल पॉइंट कांटेक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है. यहाँ से कन्वेक्स सरफेस आई, फिर यहाँ से कनकेविटी चली गई, खाना जाएगा लेकिन निकल जाएगा. एंड इट इज़ हैविंग अ पैसिव कांटेक्ट, तो एस्थेटिक भी हो गया, पेशेंट क्लीन भी कर सकता है और बायोकम्पेटेबल भी है. तो बेस्ट डिज़ाइन Pontic अगर आपसे पूछते हैं मॉडिफाइड रिज लैप एंटीरियर रीजन में, दैट इज़ योर मॉडिफाइड रिज लैप. एक और क्वेश्चन आता है बेटा कि व्हाट टाइप ऑफ कांटेक्ट डज इट मेक ऑन द म्यूकोसा? इट मेक्स अ कैपिटल टी शेप्ड. It make T for telegram. It makes a capital T shaped contact on the ridge. Okay, right? तो उसके बाद अगर next we come on to the ovate Pontic. बेटा ovate Pontic is, write down, it is one of the most aesthetic. If somebody asks you 2 questions, most aesthetic Pontic is the ovate Pontic. If somebody asks you which Pontic gives the best emergence profile, again the ovate Pontic. Why? Because it looks as if the teeth is growing from the gingiva, so it gives a very, very natural appearance. Okay, right? Write down, it is mainly indicated, the ovate Pontic is mainly indicated where there is extraction cases, जहाँ पे extraction socket होते हैं. तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम एक temporary bridge बनाते हैं, and within the extraction socket around 2 to 3 mm it goes inside the socket. तो जब healing होती है तो the soft tissue healings, it takes place around that Pontic. बाद में उस टेम्परी को निकाल देते हैं, तो वहाँ पे एक आपको डिप्रेशन मिलेगा, एंड देन वी कैन गो एड विद द फाइनल Pontic डिजाइन इन द फाइनल डेफिनेटिव प्रोसीजर, राइट? ओके, इसका एक मॉडिफिकेशन भी है, वो मैं भी बताऊंगा, ठीक है. उसके बाद है कोनिकल या बुलेट शेप्ड या हार्ट शेप्ड. इफ यू सी दैट इट इज अ कोनिकल, बुलेट शेप्ड या हार्ट शेप्ड Pontic. Okay, now write down, it is mainly given in case, or it is only given in cases of spiny या thin ridges. Spiny or thin ridges. Okay, it should not be given in case, and it is making a very, very point contact. ठीक है, अगर आपने ऐसे थिक रिज में दे दिया, वाइड रिज में, बक्कोलिंगुअली वाइड रिज में दे दिया, तो वहाँ पे फिर फूड लॉजमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है. तो इसका सिर्फ एक ही इंडिकेशन है, दैट इंडिकेशन इज योर it is mainly given in case of thin spiny ridges. Then spheroidal Pontic, by all means, it is basically convex in nature.
राइट, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट इट इज़ मेनली इंडिकेटेड इन मैंडिबुलर पोस्टीरियर्स. तो स्फेरोइडल पॉन्टिक मेनली गिवन इन केस ऑफ मैंडिबुलर एक ही बार क्वेश्चन आया बेटा. सो स्फेरोइडल पॉन्टिक मेनली गिवन इन केस ऑफ मैंडिबुलर पोस्टीरियर्स. नाउ इफ यू सी दैट दिस इज ओवेट पॉन्टिक. नाउ कैन यू सी, ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल. ये देखो, या तो एक्सट्रैक्शन सॉकेट में कर लो, और अगर एंटीरियर में करना है आपको, ओवेट एंटीरियर्स में काम आता है. मैक्सिलरी एंटीरियर्स, लैटरल्स, कैनाइंस. ओके, एक्सट्रैक्शन सॉकेट हो तो फ्रैक्चरी एक्सट्रैक्शन सॉकेट. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं बेटा ओवेट पे. एक फिगर दे रखी होगी, वहाँ एक्सट्रैक्शन सॉकेट होगा और बोलेंगे कि रिसेंटली एक्सट्रैक्टेड टीथ है, फ्रेश सॉकेट है, कौन सा पॉन्टिक दोगे? डेफिनेटली ओवेट पॉन्टिक दोगे. ठीक है, बट ओवेट पॉन्टिक में भी अगर आप देखो, डेफिनेटली एस्थेटिक्स बहुत अच्छी है. ठीक है, बट एंड पेशेंट भी क्लीन कर लेता है. बट देन द प्रॉब्लम हेयर वाज दैट कि इट इज़ अगेन मेकिंग अ वेरी ब्रॉड कॉन्टैक्ट. तो मॉडिफाइड ओवेट करने के लिए इन्होंने क्या किया, रादर देन गिविंग द डिप्रेशन इन द सेंटर ऑफ द रिज, they made the depression on the labial aspect, slightly on the labial to the center. So if you see that this portion, the most convex portion, is shifted from the center to the labial portion. So it is definitely a better design, a modified ovate. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि विच इज़ द मोस्ट एस्थेटिक पॉन्टिक, अगर ओवेट है, मॉडिफाइड ओवेट है, तो गो विद द मॉडिफाइड ओवेट. एंड मॉडिफाइड ओवेट में बेसिकली एक तो इसमें अगेन इट इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइंग ऑल द 3 डिमांड्स. Right? Okay, I hope it is clear. ठीक है, then comes the sanitary pontic, that is the bar sanitary. Okay, then the modified sanitary and the fish belly or the conventional. So if you see, the first one is the fish belly or the conventional pontic. It basically follows the contour of the ridge, or if you see, we have 2 to 3 mm of the space, so that the patient can use interdental aids to remove any food debris that is present inside beneath the pontic. Right? ठीक है, got it. This is the fish belly pontic. Okay, now then is the arc shaped or modified sanitary or parallel, that the second figure that you see, it is modified sanitary or parallel, और इसको हम arc shaped pontic भी बोलते हैं, ARC, arc shaped pontic. Now the advantage that we have of the parallel pontic over the fish belly pontic is that the connector width we get, that is more. The connector width that we get in parallel pontic is more. So if somebody asks you that and specifically these pontics are mainly given in mandibular posterior area because they are poor in aesthetics. तो नॉर्मली हमारे एस्थेटिक्स मेनली डिफाइन होते हैं मैक्सिलरी एंटीरियर, मैक्सिलरी पोस्टीरियर और मैंडल एंटीरियर से. अगर स्माइल जोन नहीं जा रहा पीछे, तो मैंडलर पोस्टीरियर इज द बेस्ट चॉइस ऑफ पॉन्टिक. इन मैंडलर पोस्टीरियर आर दी सैनिटरी पॉन्टिक्स और इट्स मॉडिफिकेशंस. तो इफ़ आई आस्क यू, तो सैनिटरी पॉन्टिक की एक मेजर इंडिकेशन है कि जहाँ इंटररिज स्पेस कम हो जाए. तो जहाँ इंटररिज स्पेस कम होगी तो पॉन्टिक छोटा आएगा. तो छोटा पॉन्टिक आ रहा है तो डेफिनेटली उसकी कनेक्टर विड्थ भी कम हो जाएगी, तो उसके टूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं. राइट? तो इसीलिए ऐसे केसेस में जहाँ इंटररिज स्पेस कम होती है, तो वहाँ पे हमको पॉन्टिक की जो एरिया है, जो पॉन्टिक और कनेक्टर का जो एरिया अगर आपको मोटा चाहिए, इफ़ यू नीड इट मोर टू बी ऑन द सेफर साइड, गो अहेड एंड गिव अ पैरेलल पॉन्टिक और मॉडिफाइड सैनिटरी और अ आर्क शेप पॉन्टिक. बार सैनिटरी में सीधा कर दिया, दैट्स इट, और ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है. ठीक है, इसमें वो वाला फंडामेंटल. ठीक है ना, तो मैंने आपको 3 जिंजावल कंसिडरेशन बताई थी. ठीक है, तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है. राइट? अब दूसरी आती है हमारी, इसमें नहीं बट नॉर्मल ऑक्लूजल कंसिडरेशन. तो ऑक्लूजल कंसिडरेशन में हमको बेसिकली ये देखना है कि देखो हमारी जो भी फोर्स पड़ेगी, मान लो पेशेंट खाना खा रहा है तो पॉन्टिक से फोर्स पड़ेगी रिटेनर पे, रिटेनर से फोर्स पड़ेगी हमारे अबटमेंट्स पे. तो जो पेशेंट खाना खा रहा है और पॉन्टिक पे फोर्स आई, तो अब पॉन्टिक पे जो फोर्स आ रही है, वी वांट दैट द रिसीविंग एरिया ऑफ द पॉन्टिक, दैट इज द ऑक्लूजल टेबल ऑफ द पॉन्टिक, शुड बी स्लाइटली नैरोअर देन द नेचुरल टीथ दैट इट रिप्लेसेस. तो जो नेचुरल टीथ जो से रिप्लेस है, तो हम क्या करते हैं, ऑक्लूजल टेबल उसको 2/3 रखते हैं ऑफ द नेचुरल टीथ. अब 2/3 कर रहे हैं, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं विड्थ कम करनी पड़ेगी ऑक्लूजल टेबल की, बिल्कुल कम करनी पड़ेगी. अब नाउ दैट शुड बी एक्सपेंस ऑफ सम कस्प्स, कि उस कस्प की विड्थ कम करनी है. नाउ ये क्वेश्चन आता है कि मैक्सिला में इफ़ यू वांट टू रिड्यूस द ऑक्लूजल टेबल ऑफ द पॉन्टिक, सो कौन से एस्पेक्ट पे कम करोगे, बक्कल एस्पेक्ट पे के पैलेटल एस्पेक्ट पे, पैलेटल कस्प के बक्कल कस्प. तो इन मैक्सिला वी टेंड टू रिड्यूस द विड्थ ऑफ द कस्प एट द एक्सपेंस ऑफ द पैलेटल कस्प. रिमेंबर, हाइट कम नहीं कर रहे हैं हम, विड्थ कम कर रहे हैं.
बक्कल पे क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बक्कल पे कम करते तो एस्थेटिक इश्यूज आ जाते हैं, इसलिए मैक्सिला में वी डू इट एट द एक्सपेंस ऑफ द पैलेटल कस्प्स. इन केस ऑफ मैंडिबल वी आर डूइंग इट एट द एक्सपेंस ऑफ बक्कल कस्प्स. अगेन रिमेंबर, हम अगर विड्थ कम करनी है तो बक्कल कस्प की रिड्यूस करेंगे, लिंगुअल कस्प की नहीं करेंगे. वाई? क्योंकि जो लिंगुअल कस्प मैंडिबल में है वो हमारे दीज आर द कस्प्स दैट डिफ्लेक्ट द टंग अवे वाइल ईटिंग. ओके, तो टंग बाइट प्रिवेंट हो जाती है. ठीक है ना. तो अगर आप देखते हो कि जो नॉन फंक्शनल कस्प होते हैं वो थोड़ा बाहर की तरफ होते हैं, तो मैक्सिला के जो बक्कल कस्प होते हैं वो चीक बाइट प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि वाइल ईटिंग इट डिफ्लेक्ट द चीक आउटवर्ड्स. ऐसे ही मैंडिबुलर लिंगुअल कस्प जो होते हैं वो हमें टंग बाइट से बचाते हैं ड्यूरिंग ईटिंग. तो मैंडिबल में यू विल रिड्यूस द ऑक्लूजल टेबल, ओके, एट द एक्सपेंस ऑफ द लिंगुअल कस्प, buccal cusp, sorry, and on the maxilla we do it at the level of palatal cusp. Remember this. I hope it is clear. तो occlusal aspect. Then there is interproximal aspect. Interproximal aspect से बेटा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें connector width, if you see this connector width, हमें connector width इतनी रखनी है कि वो टूटे नहीं. ठीक है. और दूसरा हमको gingival embrasure भी देना है. तो gingival embrasure because they act as सेल्फ क्लींजिंग एरियाज, राइट. DADH में आप स्लूइस वेस्ट पढ़ते हो, फ्री वेस्ट आप जिंजाइवल एम्ब्रेजर्स पढ़ते हो. तो फॉर सेल्फ क्लींजिंग एरिया वी नीड दैट जिंजाइवल एम्ब्रेजर. तो हमारा कनेक्टर की लेंथ इतनी होनी चाहिए कि वो हमारे कनेक्टर को वीक ना करे, और थोड़ा सा नीचे जाके हल्का सा हमें ऐसे उसको कार्व करना है कि वी हैव टू लीव सम बिट ऑफ जिंजाइवल एम्ब्रेजर, राइट. ओके. तो अगर आपसे कोई पूछता है विच इज द बेस्ट डिजाइन पॉन्टिक, डेफिनेटली मॉडिफाइड रिज लैब पॉन्टिक इज द बेस्ट डिजाइन पॉन्टिक. ठीक. स्फेरोइडल पॉन्टिक, मैंडिबुलर पोस्टीरियर, कोनिकल इन केस ऑफ थिन रिजेस, राइट. ओवेट पॉन्टिक, फ्रेशली एक्सट्रैक्शन केसेस, मॉडिफाइड रिज लैब, इट इज अ वर्सटाइल पॉन्टिक. ठीक है. रिज लैब और सैडल पॉन्टिक अब यूज नहीं होते हैं, रिमेंबर दिस, दे आर नॉट टू बी यूज्ड. ठीक है. क्लियर है. ठीक. उसके बाद आते हैं बेटा कनेक्टर्स. कनेक्टर्स में 3-4 चीज़ें हमें देखनी है कि नॉट वर्किंग, व्हाई. Okay, so now I will talk about something about I'll show you something about the connectors. Okay, I'll show you some. Now when we talk about the connectors, okay, so when we are talking about the connectors, see this picture. सो कनेक्टर वाला हो गया ये एरिया. रिमेंबर दिस, कनेक्टर और पॉन्टिक, जो रिटेनर और पॉन्टिक के बीच का जो कनेक्शन है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम कनेक्टर्स एरिया. नाउ रिमेंबर दिस, राइट डाउन. बेटा देखो, कनेक्टर्स जो होते हैं, जो हमारे कनेक्टर्स होते हैं वो हमारे दो तरीके के हो सकते हैं मेनली. वन इज रिजिड एंड वन इज नॉन रिजिड. राइट डाउन, वन इज रिजिड एंड वन इज नॉन रिजिड. ठीक. अब इफ समबडी आस्क्स यू कि मैक्सिमम फोर्स एफपीडी में सबसे ज़्यादा कहाँ लगती है, मैक्सिमम फोर्स हमारी सबसे ज़्यादा कनेक्टेड एरिया में लगती है. वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस, मोस्ट ऑफ द एफपीडीज, दे टेंड टू गेट फ्रैक्चर एट द कनेक्टेड एरिया. मैक्सिमम फोर्स लगती है बिकॉज इट इज़ द वीकेस्ट लिंक इन एन एफपीडी. ठीक है. अब अगर आपसे कोई सरफेस एरिया पूछता है पॉन्टिक का, हमें मिनिमम कितना रखना है, तो मिनिमम लिखो ऑल मेटल के लिए. ऑल मेटल के लिए वी विल कीप, for all metal we will keep, for all metal 3 by 3, 3 mm by 3 mm minimum, and for zirconia we will keep 4 mm by 4 mm.
जरकोनिया या ऑल सिरामिक के लिए मिनिमम 4 mm बाय 4 mm रखना ही रखना है, 4 mm विड्थ 4 mm हाइट। अगर नहीं रखोगे तो टूट जाएगा। फॉर ऑल मेटल, बिकॉज मेटल आर स्ट्रॉन्गर, दे टेंड टू टेक दैट फ्लेक्शनल स्ट्रेंथ वेरी वेल, तो 3x3 का फिर भी चल जाता है, इससे नीचे नहीं करना है। ठीक, तो कनेक्टर एरिया इतना रखना ही रखना है हमें। ठीक है, अब कनेक्टर एरिया कैसा होना चाहिए, लिख लो बेटा। कनेक्टर एरिया, राइट डाउन दी, इट शुड बी थिन ऑक्लूजो सर्वाइकली। अगर मैं बात करता हूँ कनेक्टर को, देखो हम 2 डायमेंशन में देखेंगे कि अगर हम फेशियल एस्पेक्ट से देख रहे हैं तो लेंथ कितनी है कनेक्टर की, और दूसरा है बक्कोलिंगुअल विड्थ कितनी है। तो याद रखो, थिन ऑक्लूजो सर्वाइकली, थिक बक्कोलिंगुअली, राइट डाउन दे शुड बी थिन ऑक्लूजो सर्वाइकली एंड दे शुड बी लिंगुअली प्लेस्ड। डेफिनेटली बक्कल तो नहीं हो सकता ना, तो लिंगुअली प्लेस्ड होते हैं, राइट। तो थिन ऑक्लूजो सर्वाइकली एंड थिक बक्कोलिंगुअली, राइट डाउन। दे मे हैव अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, जो अगर हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन और एलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन, राइट डाउन, और एलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन। बट यू हैव टू कीप सम स्पेस फॉर जिंजाइवल एम्ब्रेजर्स, रिमेंबर दिस। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि आपको जिंजाइवल एम्ब्रेजर स्पेस कहाँ नहीं छोड़नी। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ क्वेश्चन इन योर वन ऑफ द की टेक्स्ट बुक्स, इज दैट फॉर एग्जाम्पल इफ द लोअर एंटीरियर्स द रिज हैव रिजॉल्व्ड, okay, and you have to give a 6 unit FPD from canine to canine, okay, you are giving, so we will not give any embrasure space, and the Pontic that you will be using is the modified ridge lap. For mandibular anteriors you have to use a modified ridge lap without any embrasures, write it down, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है बेटा। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो हमारी इडेंचुलस रिज होती है, इडेंचुलस रिज जो होती है उसकी क्लासिफिकेशन है एक, हालांकि पूछ सकते हैं, हालांकि जिस मेरे दिमाग में आई, आई जस्ट टेल यू। देयर इज समथिंग नोन एज सीबर्ड्स क्लासिफिकेशन, वेरी नाइस, ओके। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सीबर्ड्स क्लासिफिकेशन, है ना बेटा, अगर आप देख पा रहे हैं तो क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। तो सीबर्ट ने रिज के डिफेक्ट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। क्लास 1 जो डिफेक्ट होते हैं उनकी जो रिज की हाइट तो सेम रहती है, एल्वुलर हाइट। देखो हमारी रिज जब रिजॉल्व करती है तो वो बक्कोलिंगुअल विड्थ में भी रिजॉल्व करती है और अपाइकोकोर्नली भी रिजॉल्व करती है। तो अगर रिज हमारी बक्कोलिंगुअली उसकी विड्थ कम हो गई है लेकिन लेंथ वही है पहले वाली, तो उसको बोलते हैं हम सीबर्ट्स क्लास 1 डिफेक्ट। इसका उल्टा कर दो, अपाइकोकोर्नल अगर हमारी देयर इज अ रिजॉर्प्शन, अपाइकोकोर्नल वर्टिकल में रिजॉर्प्शन हो रही है लेकिन विड्थ सेम है, देन इट्स बिकम्स क्लास 2, सीबर्ट्स क्लास 2। एंड इफ वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एज वेल एज द हॉरिजॉन्टल डिफेक्ट ऑफ द बक्कोलिंगुअल विड्थ, उसको बोलते हैं सीबर्ट्स क्लास 3। तो बेटा यहाँ पे हम इसको ठीक करने के लिए वी यूज वेरियस ग्राफ्ट्स लाइक इंटरपोजिशनल ग्राफ्ट्स और ऑनले ग्राफ्ट्स या रोल टेक्निक, पाउच टेक्निक। इसमें सॉफ्ट टिश्यू को हम बेसिकली थोड़ा भर देते हैं ताकि वो डिफेक्ट छिप जाए, फिर हम FPD करते हैं नॉर्मली। तो इफ समबडी आस्क्स यू अबाउट सीबर्ट्स क्लासिफिकेशन, आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज सीबर्ट्स क्लासिफिकेशन, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे जो कनेक्टर्स होते हैं वो हमारे मेनली 2 तरीके के होते हैं, वन इज योर रिजिड कनेक्टर्स एंड वन इज योर नॉन रिजिड कनेक्टर्स, rigid connectors and one is your non rigid connectors, ठीक बेटा। एक चीज़ और बोलूँगा कि जो हमारे जो पॉन्टिक पे तुम्हारे 2 क्वेश्चन है, देखो 2 चीज़ें ये कनेक्टर्स भी हमारे 2 चीज़ें सेटिस्फाई करते हैं, 3 चीज़ें सेटिस्फाई करते हैं इनफैक्ट, बायो मैकेनिको एंड एस्थेटिक फैक्टर्स। बायोलॉजिकल में अगर मैं ये बोलूँ, बायोलॉजिकल में वो हमेशा बात करेगा जिंजाइवल एम्ब्रेजर की, कि आपने इतनी लेंथ रखी और नीचे उसमें आपने जिंजाइवल एम्ब्रेजर भी छोड़ दिया, तो वो बायोलॉजिकली एक्सेप्टेबल है। मैकेनिकली अगर आपसे पूछता है एक्सेप्टेबल, तो बेटा उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है। तो स्ट्रेंथ तब होगी जब उसकी बक्कोलिंगुअल विड्थ ज़्यादा होगी, जब उसकी जो हमने रिक्वायर। तो अगर कोई आपसे सिर्फ ये पूछते हैं फॉर बायोलॉजिकली एक्सेप्टेबल, तो आप सोचोगे नहीं यार सिर्फ बायोलॉजिकल एक्सेप्टेबल में मुझे सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ नहीं देखनी, फिर आपने
ठीक है ना, बात समझ में आई है। और दूसरा है हमारा, अगर आपको देखना है कि हमारे इफ इट इज मैकेनिकली एक्सेप्टेबल, तो मैकेनिकल एक्सेप्टेंस में आपको फिर स्ट्रेंथ के हिसाब से देखना है, तो क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो अगर आपसे पूछा जाए फॉर मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेबल शोल्डर इट शुड बी, तो एक तो जिंजाइवल एम्ब्रेजर थिक भी होनी चाहिए और बक्कोलिंगुअली थिक भी होनी चाहिए ताकि वो टूट ना जाए। ठीक है, गॉट इट, ओके। तो दो तरीके के कनेक्टर्स होते हैं, वन इज योर रिजिड कनेक्टर्स एंड वन इज योर नॉन रिजिड कनेक्टर्स। अब रिजिड कनेक्टर्स जो होते हैं, राइट डाउन रिजिड कनेक्टर्स, दे आर इंडिकेटेड इन रिजिड कनेक्टर्स दे आर इंडिकेटेड इन शॉर्ट स्पैन FPDs। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दे आर इंडिकेटेड इन शॉर्ट स्पैन FPD। शॉर्ट स्पैन FPD का मतलब है जो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज योर शॉर्ट स्पैन FPD, मतलब दैट इज हैविंग अ सिंगल पॉन्टिक, दैट इज हैविंग अ सिंगल पॉन्टिक। ठीक, क्यों हम रिजिड का मतलब है, या तो आप कास्टिंग कर रहे हो, वैक्स पैटर्न बना के कास्टिंग कर रहे हो तो रिजिड होगा, ठीक, या फिर आपने 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 सोल्डरिंग कर दी या वेल्डिंग कर दी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, तो कास्टिंग कर दी, सोल्डरिंग कर दी और कास्ट कर दिया बेसिकली। ठीक है, ये तो ये होते हैं रिजिड कनेक्टर्स। रिजिड कनेक्टर्स दे आर इंडिकेटेड इन, जैसे मैंने बोला, शॉर्ट स्पैन FPD। तो शॉर्ट स्पैन FPD में ये देखा गया, जब फोटोलास्टिक स्टडीज़ की गई तो ये देखा गया कि जब भी हम शॉर्ट स्पैन FPD करते हैं तो बेटा यहाँ पे ना एक रूल आता है जिसको हम बोलते हैं पॉन्टिक रूल। मैं आप, दिस इज आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बट स्टिल आई विल टेल यू। पॉन्टिक रूल का ये मतलब है, हम जब फ्लेक्शन देखते हैं तो अगर एक पॉन्टिक है तो हमेशा फ्लेक्शन विल बी 1 raised to the power 3, यानी 1 × 1 × 1, तो वो एक ही रहेगा। अगर मैं 2 पॉन्टिक कर दूँ तो 2 पॉन्टिक raised to the power 3, दैट इज 2 × 2 × 2, 2 2 जो 4 2 8 टाइम्स फ्लेक्शन होगा अगर 2 पॉन्टिक हो गए। यही 3 हो गए तो 3 × 3 × 3 27 टाइम्स ज़्यादा फ्लेक्स करेगा अगर 3 पॉन्टिक हो गए तो। ठीक है ना, तो इसीलिए फोर्स आती कहाँ से, पॉन्टिक से, जाती कहाँ है, कनेक्टर से, फिर वो रिटेनर पे चली जाती है। तो कनेक्टर एरिया सबसे ज़्यादा प्रोन होता है। ठीक है, सो इन सच केसेस when you have to give design a pontic, you have to see both biological and mechanical and aesthetic consideration। अब aesthetic में मैंने क्या बोला, they should be lingually और palatally placed, ताकि जब पेशेंट हंसे तो दांत सेपरेट दिखें, ऐसा नहीं है एक जैसा दिखे बिल्कुल। ठीक है ना, तो यू हैव टू फाइंड इट, आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ठीक, उसके बाद मैंने बोला रिजिड कनेक्टर्स में आप सोल्डरिंग होगी, कास्ट होगी, वेल्ड होगी, तो और ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा आपके, व्हेन यू सी देन देयर आर सम नॉन रिजिड कनेक्टर्स। आपने पढ़ा होगा मेल फीमेल, टेनन मोटॉइज। सो इन योर स्क्रीन इफ यू सी इट इज द फर्स्ट नॉन रिजिड कनेक्टर। अब क्वेश्चन आता है कि नॉन रिजिड कनेक्टर की जरूरत क्या पड़ गई भाई, हाँ, नॉन रिजिड कनेक्टर की जरूरत क्या पड़ गई। तो इफ यू सी अ नॉन रिजिड कनेक्टर, राइट डाउन द नॉन रिजिड कनेक्टर इज गिवन in cases of mal aligned abutments, when you're giving an abutment that is mal aligned, tilted abutments, ठीक है, then you can give the then you can give non-rigid connectors where the terminal abutment is predominantly unsound. Write down where it is unsound, the predominantly it is predominantly unsound, जो हमारा टर्मिनल अबटमेंट है, मतलब प्रेडोमिनेंटल एक्शन उसका बहुत अच्छा नहीं है, प्रेडोमिनेंटल सपोर्ट। देन व्हेन एक क्वेश्चन आता है कि देखो लॉन्ग स्पैन अगर पूछा जाए, लॉन्ग स्पैन में दे सकते हैं बट ट्राई टू अवॉइड इट, इट शुड बी द लास्ट इंडिकेशन। ठीक है, ये कहीं पर रेफरेंस में दे रखा है, आई लेट यू नो लेटर। बट एक और इसकी इंडिकेशन है हमारी नॉन रिजिड कनेक्टर की, इन पायर अबटमेंट्स। तो इफ यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर इट इज़ अ पायर अबटमेंट। हमारा जो हमारा ये हमारा कैनाइन, फर्स्ट प्रीमोलर इज एब्सेंट, सेकंड प्रीमोलर, देन फर्स्ट मोलर इज एब्सेंट। तो आपका जो फर्स्ट प्रीमोलर है इट इज़ अ पायर अबटमेंट। पायर अबटमेंट क्या होता है, पायर अबटमेंट होता है
जो कि राइट और लेफ्ट मतलब दोनों साइड इट इज सराउंडेड बाय एडेंचुलस रिज, तो इट बिकम्स अ मेजर लीवर सिस्टम. I'll just let you know how to solve such questions. ओके, तो ऐसे केसेस में जहाँ पायर अबटमेंट्स हैं, जहाँ पे आप एंटीरियर और पोस्टीरियर्स को कंबाइन कर रहे हो, यू हैव टू गिव अ नॉन रिजिड कनेक्टर, यू हैव टू ब्रेक दी स्ट्रेसेस. ओके, in case of tilted teeth again you will, if you see in the second picture, ठीक है, ये अगर हमारा मोलर tilted है, where you cannot have, question आता है where you have malaligned abutments and you cannot have the common path of withdrawal and common path of insertion, there you have to go ahead with your non rigid connectors. There you have to go with non rigid connectors. तो नॉन रिजिड कनेक्टर में थोड़ा सा प्ले होगा. अगर फिक्स्ड है, रिजिड है, तो वहां पे हमारी जो स्ट्रेसेस हमारे जो शॉर्ट स्पैन में कर रहे हो, तो उसमें रीजन आप क्यों देते हो? बिकॉज स्टडी शोज दैट देयर इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्सेज एंड दैट आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू द अबटमेंट्स. नॉन रिजिड कनेक्टर में आपने देखा होगा, द बेस्ट एग्जांपल दैट आई कैन गिव इट टू यू, आप हमेशा जैसे आपने देखा होगा मेट्रो के दो डब्बे जहाँ जुड़ते हैं वहाँ पे एक वो रखी होती है एंड इट गोज एक से ऊपर एक से, वो कभी सेपरेट नहीं होते, बट जब वो चलती है मुड़ती है तो आप देखोगे इट मूव्स लाइक दिस, बट दे मूव अ टेंडम. दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ नॉन रिजिड कनेक्टर दैट आई कैन गिव इट टू यू, राइट. तो नॉन रिजिड कनेक्टर में बहुत सारे आते हैं, मैंने आपको बता दिया. वी हैव टेनन एंड मोटोइस, दैट इज की एंड कीवे टाइप, और मेल एंड फीमेल, दैट यू कैन सी. फीमेल इज द मोटोइस, अगर याद रखना है, माँ फॉर मोटोइस, माँ इज अ फीमेल. टेनन, ठीक है, टेनन मेल, ओके, राइट. तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है बेटा. तो इफ यू सी दैट द फर्स्ट इंडिकेशन दैट वी हैव इज द पायर अबटमेंट. तो बेटा एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पायर अबटमेंट पे. क्या क्या क्वेश्चन आते हैं अब देख लो. इफ यू सी दी पायर अबटमेंट, पहले तो क्वेश्चन आते हैं कि आप एफपीडी जो बनाओगे वो आप दो पार्ट्स में बनाओगे, द एंटीरियर एफपीडी एंड द पोस्टीरियर एफपीडी, द एंटीरियर एफपीडी एंड द पोस्टीरियर एफपीडी. तो दिस इज द पायर अबटमेंट. ना पायर अबटमेंट में एक प्रॉब्लम क्या होती है? पायर अबटमेंट प्रॉब्लम ये होती है कि पहले क्या हुआ था, जस्ट देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट, कि पहले क्या होता था, पूरा 5 यूनिट का ब्रिज दे देते थे. दे यूज्ड टू गिव अ 5 यूनिट ब्रिज रिजिड. लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हुआ, बिकॉज अब देखो इट क्रिएट्स अ सीसॉ लाइक सिचुएशन. हमारा बेचारा सेकेंड प्रीमोलर फोर्स पड़ रही है, इट गोज लाइक दिस, लाइक अ सीसॉ, सारा का सारा फलक्रम हमारा यहाँ पड़ गया, एंड देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ बोन लॉस ऑन द डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द पायर अबटमेंट. तो सारी की सारी जो हमारी स्ट्रेसेस थी, दे वर मेनली कंसिडर्ड ऑन द डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द पायर अबटमेंट. तो इसीलिए जब ये देखा कि ये अबटमेंट फेल होने लगा, तो उन्होंने क्या कहा, लेट अस place a non-rigid connector or stress breaker and we let us do ये ब्रिज को दो पार्ट में डिवाइड कर दो और दोनों के बीच में एक स्ट्रेस ब्रेकर डाल दो, एंड स्ट्रेस ब्रेकर इन द फॉर्म ऑफ नॉन रिजिड कनेक्टर. रिमेंबर वन थिंग, दैट व्हेन यू आर प्लेसिंग द मेल एंड द फीमेल, ओके, द पाथ ऑफ इंसर्शन विल बी शुड बी एक्सीलेंट, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए. और दूसरा एक और प्रॉब्लम होती है कि प्रॉब्लम नहीं, यू हैव टू यूज अ सर्वेयर. Write down, you have to use a surveyor for saying checking the path of insertion and the path of withdrawal. नहीं होगा सेम तो बेटा लॉक की और कीवे लॉक में नहीं जाएंगे. अब क्वेश्चन क्या आता है, नॉन, ये दिस इज द मेल पोर्शन. नाउ क्वेश्चन आता है कि एक तो आप जो पायर अबटमेंट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स कंसंट्रेटेड होती है डिस्टल एस्पेक्ट, तो डेफिनेटली डिस्टल एस्पेक्ट पे ही आप ब्रेक करोगे, पहला क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, जो मेल और फीमेल लगाते हो उनकी पोजीशन क्या चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते. अब मैं कहूँगा इसको, आई विल से दिस इज अ एंटीरियर एफपीडी और ये 2 यूनिट का इज अ पोस्टीरियर एफपीडी. तो पहले मैं एंटीरियर एफपीडी बना लूँगा, ठीक है, और उसको रखूँगा, एंड यू कैन सी दिस इज द फीमेल. द फीमेल पोर्शन इज प्लेस्ड एट द डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द पायर अबटमेंट. इट इज प्लेस्ड एट द डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द पायर अबटमेंट, एंड द मेल इज प्लेस्ड एट द मीजियल एस्पेक्ट ऑफ द डिस्टल पॉन्टिक. राइट डाउन, इट इज, ये हमारा मीजियल पॉन्टिक है पहले एफपीडी का, ये हमारा डिस्टल पॉन्टिक है दूसरे एफपीडी का. तो डिस्टल पॉन्टिक के मीजियल एस्पेक्ट पे आप मेल पार्ट लगाओगे. तो आप क्या करोगे, आपने पहले एंटीरियर को सीमेंट कर दिया और आपने इसके बाद फिर इसको सीमेंट कर दिया. तो जब इसके अंदर मेल फीमेल के अंदर जाएगा
तो बेसिकली देयर विल बी स्लाइट बिट ऑफ मूवमेंट, तो वहाँ पे स्ट्रेसेस टूट जाते हैं। स्ट्रेसेस टूटने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे कोई भी बोन लॉस नहीं हुआ। ठीक है, ये बहुत तरीके के हो सकते हैं। स्प्लिट पॉन्टिक हो सकता है बेटा, क्रॉस विंग कनेक्टर्स होते हैं। ठीक है, आपका क्रॉस पिन एंड विंग कनेक्टर्स होते हैं, आपके स्प्लिट पॉन्टिक भी हो सकता है। तो रूल क्या है कि कहीं ना कहीं आपने पॉन्टिक को या तो आपने स्प्लिट कर दिया तो वो ऐसे मूव करते रहेंगे। एक क्रॉस पिन एंड विंग होता है जहाँ पे पॉन्टिक ऐसे लगा दिया जाता है, बीच में छेद होता है और उसके बीच में एक स्लाइटली एक लॉक लगा दिया जाता है। ठीक है ना, इट इज़ जस्ट लाइक ए दरवाजे की जो कुंडी होती है उसके बीच में एक हम वो डाल दें, डंडी डाल दें, तो दरवाज़ा ओपन तो नहीं होगा बट वो हल्का हल्का हिलेगा ऐसे, दैट्स इट, राइट। तो बट नॉन रिजिड कनेक्टर के साथ एक प्रॉब्लम है अगेन, यू नो, कि उनको कॉस्ट बढ़ती है, कम्प्लेक्स है। ठीक है, उनको डिज़ाइन करना मुश्किल है, यू हैव टू यूज़ अ सर्वेयर। अगर आपका वो क्या कहते हैं रिपेयर अगर करना पड़े तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, वियर आउट भी हो सकते हैं ना। जब भी हम नॉन रिजिड कनेक्टर करते हैं तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ सेवरल थिंग्स। whenever we are doing non rigid connector you have to take care of several things। एक बेटा देखो, एक तो हम कभी भी मेल और फीमेल की पोजीशन, देखो चाहे हमने डिस्टल एस्पेक्ट पे रख रखा है, लेकिन मेल और फीमेल के पोजीशन को हम चेंज नहीं करेंगे। मेल और फीमेल के पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, राइट। हम मेल विल बी प्लेस्ड एट द डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द mesial aspect of the distal pontic, and the female that is the motois is placed at the distal aspect of the pyre abutment। we cannot change this। आपको यहाँ मेल लगा दो यहाँ फीमेल लगा दो, नहीं। वाई? बिकॉज बेटा दांतों की एक ना मीजियल फोर्स होती है। ठीक है, वी वांट द लॉकिंग इफेक्ट रादर देन द अनलॉकिंग इफेक्ट। तो अगर आप उल्टा कर दोगे, जब फोर्स लगेंगे तो मेल फीमेल में से निकल जाएगा एंड देयर विल बी अनलॉकिंग ऑफ द की एंड द कीवे। तो अगर आपको अनलॉकिंग नहीं चाहिए तो एक तो आपको देखना है कि हम जब भी हम ये करते हैं इट शुड नॉट बी अपोज्ड बाय इडेंचुलर स्पेस और आरपीडी और अ नॉन रिजिड कनेक्टर इटसेल्फ। लिखो, नॉन रिजिड कनेक्टर शुड नॉट बी अपोज्ड बाय आरपीडी और इडेंचुलर स्पेस। वाई? बिकॉज सुपररप्शन हो जाएगी तो लॉक की और कीवी में से निकल जाएगा, सिंपल। और आरपीडी, ठीक है। You can see how it is designed in a you know in a tilted molar। tilted में आपने देखो, ये कैन यू सी इंटीरियर एफपीडी है, एक है सिंगल है, मेल आपने लगा दिया ऑन द डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द पॉन्टिक एंड फीमेल आपने यहाँ पे दांत के जो टिल्टेड टीथ है उसके मीजियल एस्पेक्ट पे लगा दिया। अगेन यू विल यूज अ सर्वेयर फॉर दिस, यू कैन नॉट डू विदाउट अ सर्वेयर। देन अगर कोई ये बोले आपको कि भैया के हमें वो चाहिए, क्या कहते हैं, डायस्टीमा मेंटेन करना है, तो इफ़ यू सी दिस पिक्चर, इज अ ब्यूटीफुल पिक, कैन सी ये भी पॉन्टिक है, दिस इज अ रिटेनर, सॉरी, राइट। तो अगेन सॉरी, आई एम रियली सॉरी, दिस इज अ कनेक्टर, दिस इज अ टाइप ऑफ अ कनेक्टर, इन्होंने लूप कनेक्टर। ठीक है, आप देखो, अगर कोई ऑफिशियल आपसे बोले कि भाई मुझे डायस्टीमा मेंटेन करनी है और आपको बना सकते हो तो बना दो, तो इफ़ यू सी दैट इट इज़ अ लूप कनेक्टर। ठीक है, हम कनेक्टर नॉर्मली हम इंटरप्रॉक्सिमल एरिया में देते हैं, यहाँ पे हमने दो बनाए और ये वैक्स पैटर्न में एक लूप बना दी जो कि पैलेटल म्यूकोजा पे रेस्ट करता है। तो दिस इज हाउ, इफ समबडी आस्क्स यू हाउ टू मेंटेन द मिड लाइन डायस्टीमा, तो इट इज मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ अ लूप कनेक्टर। ठीक है, गॉट इट? ओके, just show you some show you some article if it is possible, because I want
Just a minute. So if you can see this case report, there is a parabutment. Okay, in place. Just show you some other Pontic if possible. Really sorry, my E pen is not working. I'm not able to draw it, but I'll show you some non-rigid connectors. I want to show this picture क्योंकि आ सकते हैं as a pic, आ सकते हैं बेटा. Just a minute, beta. Just give me 2 minutes. So if you see that possible हुआ तो I just want to show you. See, can you see this is a key and keyway? देखो लॉक एंड की एंड कीवे वाले ऐसे होते हैं. अगर ऐसी कोई पिक्चर आती है, इट्स अ नॉन रिजिड कनेक्टर. रिमेंबर दिस, इट्स अ नॉन रिजिड कनेक्टर. ठीक है, बट आई वांट टू शो यू वन स्लाइड. एक्चुअली मैं ढूंढता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट. Just wanted to show you some pics. Really sorry, I can't draw it. Yes. This I have shown you 10 and modest type. Okay, I'll show you the next one. So can you see this? मैंने बताया था ना, इसका सीटिंग एक्शन होता है, मीजियल मूवमेंट होती है दांतों की, बट एज ए सीटिंग एक्शन. अगर उल्टा कर दोगे तो इट विल हैव अ अनलॉकिंग इफेक्ट. ठीक है, अनसीटिंग एक्शन इफ यू डू इट रिवर्स.
ठीक है ना। तो दिस इज हाउ दी, अगर आपको बेटा, अगर आपको ऐसे दिखे कि देर आर देर इज अ स्प्लिट इन दी पॉन्टिक, तो वो होते हैं बेटा स्प्लिट पॉन्टिक टाइप, ठीक है ना। या दूसरा आपको दिखे कि अगर पॉन्टिक में अगर बीच में एक छेद दिख रहा है, यू सी अ होल इनसाइड द पॉन्टिक, एंड देर इज अ पिन कनेक्टिंग दैट, so that is your cross pin and wing. Okay, not able to get good pictures. I hope it is clear. Now I will ask you some questions. I always ask some questions at the end of the the session. Now first question is that what are the gingival considerations all are true except, first question is the gingival consideration all are true except, first, it should always make contact with the gingiva. Second, it should be cleansable. It should be biocompatible. Third and fourth, there should not be any blanching. So here the best answer is A. बेटा it can be mucosal contact, it cannot be a mucosal contact, दोनों हो सकते हैं, ठीक है बेटा। फिर कुछ आते हैं प्री फैब्रिकेटेड पॉन्टिक्स, ठीक है। प्री फैब्रिकेटेड पॉन्टिक में बेटा आप ये देख लेना, देखो आज तक कोई भी क्वेश्चन आया नहीं, बहुत 30 साल पहले क्वेश्चन आया था। प्री फैब्रिकेटेड पॉन्टिक्स आते हैं, कुछ उनके नाम होते हैं जैसे पॉन्टिप्स, अगर कभी आए PONTIP, ट्रू पॉन्टिक कभी नाम आप सुनो, या आप सुनो नाम जैसे इंटरचेंजेबल फेसिंग, या फ्लैट बैक विद पोर्सलिन फेसिंग, ट्रू पॉन्टिक, पॉन्टिप, राइट। अगर आप ऐसे नाम सुनते हो तो दोज वर प्री फैब्रिकेटेड पॉन्टिक्स, अब यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। उनको ग्राइंड करके उनमें मतलब किसी में पिन लगा दी, किसी में छेद कर दिया, XYZ, दोज वर फिटेड, एंड दे वर फैक्ट्री मेड, नॉट यूज नाउ डेज, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल पॉन्टिक? रिजलैप, मॉडिफाइड रिजलैप, ओवेट, मॉडिफाइड ओवेट। द मोस्ट वर्सेटाइल एंड द बेस्ट डिजाइन पॉन्टिक इज द मॉडिफाइड रिजलैप पॉन्टिक। थर्ड क्वेश्चन, द बेस्ट पॉन्टिक इन एक्सट्रैक्शन सॉकेट केसेस। मैं इसमें आपको दो तरीके की चॉइस दे रहा हूँ, एक जिसमें आपका है रिजलैप, मॉडिफाइड रिजलैप, ओवेट एंड कोनिकल। डेफिनेटली यहाँ पे तो एक्सटेंशन सॉकेट में डेफिनेटली आप ओवेट आप मार्क करेंगे। अगर मान लो बेटा इसमें मॉडिफाइड ओवेट भी होता है तो बेस्ट पॉन्टिक वुड बी मॉडिफाइड ओवेट। अगर ओवेट और मॉडिफाइड ओवेट दोनों दे रखे हैं, गो विद मॉडिफाइड ओवेट। अगर नहीं दे रखा तो गो विद योर अगर मॉडिफाइड ओवेट नहीं दे रखा देन गो विद योर ओवेट पॉन्टिक, ठीक, राइट। पॉन्टिक दैट इज इंडिकेटेड इन थिन एंड स्पाइनी रिजेस, choices are egg shaped pontic, spheroidal pontic, आपका bar sanitary and parallel pontic. So here the answer is a heart shaped or the egg shaped pontic, right? Next question and the last question for the day, that which pontic is indicated, which pontic is indicated, or okay, next question, who classified the ridge defects for or the alveolar ridge defect for FPD? Siebert's, ठीक है। तो सीबर्ट आंसर होगा बेटा उसमें। सीबर्ट क्लास 1 मैं दोबारा बोल रहा हूँ जहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिफेक्ट होता है, सीबर्ट क्लास 2 जहाँ पे वर्टिकल डिफेक्ट होता है। थर्ड इज द कॉम्बिनेशन, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, उसमें फिर आप ग्राफ्ट करते हो, ऑनली ग्राफ्ट, इंटरपोजिशनल ग्राफ्ट, XYZ वहाँ आप कर सकते हो, ठीक। देन आई थिंक एंड बेस्ड ऑन द मटेरियल द पॉन्टिक कैन बी in all metal, in all ceramic or the PFM depending upon what you are selecting, ठीक है। कनेक्टेड एरिया पर सबसे ज़्यादा फोर्स पड़ती है, ठीक है। ऑल मेटल या PFM के लिए 3/3 का मिनिमम, और ऑल सेरामिक के लिए 4/4 का।
जरकोनिया पूछे तो 4/4, अगर ईमैक्स 4/4, इससे कम होगा तो नहीं कर पाओगे। लास्ट क्वेश्चन that I asked is the which, if there is a reduced interocclusal space, the best designed Pontic in mandibular posterior area is answer Sanitary, modified Sanitary, bar Sanitary, and fourth is the conical Pontic. So when I have told you if there is a reduced interart space, you see that the connector width will be compromised. So to get the best connector width, we have parallel Pontic or the modified Sanitary or the arc shaped Pontic in mandibular posterior area. और mandibular posterior area में सारे के सारे Sanitary Pontic काम करते हैं। I hope today's session was good. People have understood about these two things. I'm really sorry that there was some technical glitch. My E-pen was not working. Next time I'll try that everything is in place. Thank you so much. पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो. God bless you all. Thank you so much.